بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. آج بھی ہم بات کریں گے کوری ماڈل ولیج کے حوالے سے. کوری ماڈل ولیج بہت ہی پرانا گاؤں ہے اور اس کو وفاقی کابینہ نے کوری ماڈل ولیج بنانے کا فیصلہ کیا تھا. لیکن اب جو ہے ہمارے جو چیئرمین ہیں محمد علی رنداوا صاحب، ان کو مس بریف کیا گیا، غلط معلومات دی گئیں. ویسے تو چودھری محمد علی رنداوا صاحب کا ایک ڈائیلاگ بھی سی ڈی اے میں مشہور ہے کہ جنہیں کام نہ کیتا میں لتر لا لینا. تو میں چودھری محمد علی رنداوا صاحب کو مشورہ دوں گا کہ جس بندے نے بھی آپ کو غلط معلومات دی ہیں تو اب یہ بہترین موقع ہے، لتر لا لو تو انہوں پوچھو تو غلط کی معلومات دیتی ہیں. تو باقی معلومات جو ہیں وہ میں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو منٹس جو ہیں وہ آپ ہمارے اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. باقی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی مانگٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کوری ماڈل ولیج کے حوالے سے سیکٹری یہ جو بورڈ میٹنگ ہوئی اس میں جو غلط معلومات جو دی گئی ہیں وہ کیا کیا معلومات ہیں، حقیقت کیا ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اس کو ہم جو بورڈ کے منٹس ہیں، دس از پبلک ڈاکومنٹ. صحیح. جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو اس میں 4 چیزیں بڑی واضح ہیں. صحیح. سب سے پہلے ہے کہ جی 2 ایگزامپلس دی گئیں. ایک ٹریپ ولیج ٹرمنالوجی یوز کی گئی اس منٹس میں جو بھی ہے کہ جی I-17 اور E11 اور I-17. I-17 میں بولا I-17 اور E11 میں پہلے ہی ایگزامپلز موجود ہیں، لہٰذا اس ولیج کو ہم ایسے ہی رکھ لیں. اچھا. میں اس میں یہ کلیئر کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ E11 کا سٹیٹس انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے. E11 جو تھا، یہ جو سی ڈی اے کا ماسٹر پلان بنا تھا 1960 میں، اس میں 2 پاکٹ کو ایگزمپٹ کیا گیا تھا فرام ایکوزیشن. صحیح. صحیح. E11 کو کیا گیا تھا دربار شریف گولڈا شریف کے لیے، اور ایک فیض آباد میں تھا پیر صاحب دیول شریف کے لیے. جی صحیح. E11 کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جہاں چونکہ ایگریکلچر لینڈ ہے ساری، تو اس کو جتنی انکم آئے گی اس کو سی ڈی اے یوز کر اپنے وہ دربار کے لنگر اور اس طرح اس کی ضروریات کے لیے استعمال ہوگی. صحیح. اس لیے گولڈا جو موضع ہے یا گاؤں ہے وہ ایگزمپٹ کیا گیا ایکوزیشن سے. بالکل صحیح. تو کوری تو کسی ماسٹر پلان میں یا کسی آرڈیننس میں ایگزمپٹ نہیں کیا گیا فرام ایکوزیشن، اور سی ڈی نے کیا بھی ایکوائرڈ. ہاں صحیح. دونوں کا کمپٹیشن مطلب کمپیریزن نہیں بنتا. ٹھیک. جہاں تک تعلق ہے I-17 کا، اگر آپ سی ڈی اے کے ماسٹر پلان کو دیکھیں تو سیکٹر I-17 ریگولر سیکٹر نہیں ہے سی ڈی اے کا. صحیح. یہ آئی سی ٹی لمٹس میں آتا ہے، لیکن سی ڈی اے کا ماسٹر پلان کے مطابق آخری سیکٹر جو ہے H-16 اور I-16 ہے. یعنی B-17 بھی نہیں، وہ ریگولر سیکٹر نہیں ہے، لیکن وہ زون 2 میں چلے. میں زون 1 کی بات کر رہا ہوں. صحیح. لہٰذا ایک سٹیج پہ انوائرمنٹل پولیوشن کا ایشو اٹھا سیکٹر I-9 اور I-10 میں. ٹھیک. یہ میں کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں ہم نے I-17 اس وقت لانچ کیا تھا. یہ 2010-11 کی بات ہے. صحیح. تو میرے بھائی اس وقت یہ ہوا کہ جی فیصلہ ہوا، اور بڑی اس پہ کورٹ پہ کیسز بھی تھے کہ جی I-9 I-10 کی انڈسٹری کو شفٹ کریں. صحیح. پھر سموک سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ اس وقت جو انڈسٹری دھواں دیتی تھی ان کو فلٹرز لگوائیں یا ان کو پولوشن کنٹرول کریں، آلٹرنیٹیولی ان کو آپ شہر سے باہر لے جائیں. صحیح. سو ان جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے اس وقت کے بورڈ نے تو ڈیسائیڈ کیا کہ I-17 ہمارا ریگولر سیکٹر نہیں ہے، لیکن آئی سی ٹی لمٹ میں آتا ہے. تو ادھر جتنی زمین اویلیبل ہے سی ڈی اے اس کو ایکوائر کر لے گا فار اسٹیبلشمنٹ آف انڈسٹریل اسٹیٹس. صحیح. آن دا اینالوجی آف I-9 I-10. بالکل صحیح. چونکہ یہ اس کی جو موڈیلٹیز تھی اس میں یہ تھا کہ سارے پیسے ان لوگوں نے دینے ہیں جو الاٹیز ہوں گے، چیمبر اس میں ویریفائی کرے گا، اور وہ لوگ 25% پیمنٹ کریں گے. متاثرین جو تھے یا اس کے جو ریزیڈنٹ لینڈ اونرز کے ساتھ باقاعدہ سی ڈی اے بورڈ کی میٹنگز ہوئی کہ جی اتنے پیسے ہمیں آئیں گے، جو جوائنٹ اکاؤنٹ کھلے گا آپ دیں گے. لہٰذا وہاں کو سی ڈی آئی سی پلانٹ سیٹلمنٹ نہیں لا رہا تھا ریزیڈینشل یا اس طرح کی، تو اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ نون ولیج بہت بڑا ہے.
हाँ लिहाजा हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ अब उसका कंपैरिजन आप कुरी मॉडल विलेज से नहीं कर सकते। सही कुरी मॉडल विलेज है, मास्टर प्लान की प्रोविजन है सही और ये एक्वायर हुआ। बिल्कुल सही। लिहाजा ये दोनों जो प्रेसिडेंट्स कोट किए गए E11 और I17 का, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है कुरी को एज इट इज दीवार लगा के रिटेन करने का। एक जो चीज मिनट्स में ये सही मिसब्रीफ हुई। फिर उसमें सेक्टर X16 का भी जिक्र है। X16 में नून की जमीन जरूर है लेकिन X16 में मौजा नहीं है। ठीक। लिहाजा ये जो प्रेसिडेंट्स कोट किए गए ये गलत ठीक है। नहीं किए गए। सही। अब दूसरी बात ये है कि ये ट्रैप विलेज कह लें या मौजा को ऐसे रखना, ये लाहौर में एक प्रैक्टिस होती है। ट्रैप विलेज से क्या मुराद है? मतलब होता है कि जो गांव एग्जिस्ट करता है ना, उसको फिर एक्वायर नहीं किया जाता, उसको आप एज इट इज रहने देते हैं, अलबत्ता एक्सेस वगैरह उसको दे देते हैं। ये कुरी मॉडल विलेज के जो लोग हैं उनको ट्रैप किया जा रहा है। ट्रैप कर रही है, मतलब आप देखेंगे कि इसका मैं नाम वैसे सही दिया है, ट्रैप विलेज। अच्छा, लाहौर ये ट्रैप विलेज जो है ना, कोई टर्मिनोलॉजी प्लानिंग की भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सही। बहरहाल आप बात ये कि लाहौर में जो प्रैक्टिस है, चूंकि प्राइवेट सोसाइटीज वहाँ बनती हैं तो वो इतना नहीं, उनको कंपनसेट नहीं करती। उनका होता है कि जी बस ठीक है, वो इर्द गिर्द जगह कर लो, उन्हें सड़क दे दो, तो वो वहाँ पे हो जाता है। नंबर वन कि ये प्रेसिडेंट जो इसके लिए कोट किया गया समरी में, उनकी रेलेवेंस नहीं बनती। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंस, आपने सारे सेक्टर एक्वायर किए हुए, मसलन हम कल सैदपुर की बात की, एक्वायर्ड है। हमने मालपुर की बात की, एक्वायर्ड है। हमने सेक्टर 12 सीरीज से आगे सबका अवार्ड किया हुआ है। अब मुझे बताएं कि अगर इधर आप ट्रैप विलेज, जो इनकी में टर्मिनोलॉजी ट्रैप विलेज इधर बनाते हैं, व्हाट अबाउट सैदपुर? वो कल को नहीं डिमांड करेंगे कि हम मालपुर वाले नहीं कि जनाब हमारी बाउंड्री वाल लगा दे, हम बैठे हैं। नहीं, यहाँ तो कुरी मॉडल विलेज वाले पता क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी ये बाउंड्री वाल लगाएंगे तो क्या हम अछूत हैं कि हम यहाँ खड़े होकर उधर DHA को देखा करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल। दूसरी बात कि कुरी मॉडल विलेज के जो बहुत सारे मुतासिर, उनको प्लाट अलॉट हो चुके हैं। वो किस सेक्टर में? उधर ही। अच्छा। जो कुरी के जो बिल्ट अप एरिया का जब अवार्ड हुआ, बिल्ट अप एरिया के बदले और उनकी लैंड के बदले उनको कुरी मॉडल विलेज में ही प्लाट अलॉटेड है। सही। तो मेरे भाई जिनको प्लाट है, उन प्लाटों के आप वापस लेंगे उनसे? ये भी CDA के लिए एक मसला होगा। मसला क्या, बहुत बड़ा मसला है कि इट्स अ बिग क्वेश्चन कि आपने तो आधे गांव को तो प्लाट अलॉट कर दिए हुए। ये उस समरी में लिखा हुआ है कि 2700 जो है वो जेन्युइन थे और क्लियर होके आए। जब आपने प्लाट भी अलॉट कर दिए हुए, अब किस पॉलिसी के तहत आप उनसे वो प्लाट भी वापस लेंगे और उनको उधर दीवार में बंद करेंगे? सही। ये भी इसकी एक चीज मिसकोट हुई है। नहीं तो मेंबर प्लानिंग इससे मुतल्लिका होता है ना। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो मैं अक्सर बात करता हूं, हाँ जी, कि जिसका काम उसी को साधे। बिल्कुल। आप जब इंजीनियरिंग की पोस्ट पे किसी को लगाते हैं, उसको कहते हैं इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लेके आओ। सही। और एक्सपीरियंस लेके आओ एज इंजीनियर। बिल्कुल ठीक। जब आप टाउन प्लानिंग की पोस्ट के ऊपर किसी को लगाते हैं, हाँ जी, तो हमारी एक पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स बनी हुई है जी। सही। वहां पे लिखा हुआ है कि टाउन प्लानर और टाउन प्लानिंग के काम वो बंदा कर सकता है जिसके पास टाउन प्लानिंग की क्वालिफिकेशन हो, जो P के साथ एज टाउन प्लानर रजिस्टर्ड हो। तो क्या मेंबर साहब जो हैं उनको कोई मतलब चांद के है, वो चांद से उतरे हैं या क्या है कि ना उन पे क्वालिफिकेशन लागू होती है, ना उन पे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है P एक्ट जो है, ना उसमें वो लागू होता है। अगला उसका नुकसान जो कि उनको प्लानिंग का काम का तजर्बा नहीं है, लिहाजा इस तरह की चीजें हो रही हैं। असल में तो वो एक स्पीड ब्रेकर है ना। पहले मरले में वहां पे चीज रुकनी चाहिए थी मेंबर प्लानिंग के पास कि भाई ये आप गलत चीज लेके आए हैं। देखिए, जो डिफरेंट टीयर्स बनते हैं ना गवर्नमेंट सेटअप में, वो इसलिए होता है कि AD या DD लेवल का बंदा जो, उसको समझा जाता है कि इन्होंने सिर्फ होमवर्क स्पेड वर्क करके इंफॉर्मेशन के एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देना है। डायरेक्टर का काम होता है उसको
स्क्रूटनाइज करना, उसको असेस करना, एवेल्यूएट करना। लेकिन अरशद चौहान साहब तो सीडीए की इची बीची सारे सेक्टरों की जानते हैं। सर मुझे देखे, मैं आपको फिर वही उसके पास है कि ही इज टाउन प्लानर। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जो बंदा है ही रेलेवेंट है। देखें, मेंबर प्लानिंग की जब हम बात करेंगे, ना उसके पास क्वालिफिकेशन टाउन प्लानिंग की, ना उसके पास टाउन प्लानिंग का एक्सपीरियंस, ना उसकी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसकी वायलेशन, ना उसकी पी की रजिस्ट्रेशन एज टाउन प्लानर। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं फॉर अपॉइंटमेंट एज मेंबर प्लानिंग, उसमें टाउन प्लानिंग क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, और वो भी मास्टर्स एंड पीएचडीज। तो ये बंदे के पास कुछ भी नहीं। अच्छा मुझे एक बात बता देना सर जी, कि ये जो कुरी मॉडल विलेज है, इसको वफाकी कबीना ने इसकी मंजूरी दी हुई है। बिल्कुल जी, और मास्टर प्लान का हिस्सा है। अब वो वफाकी कबीना का जो फैसला है उसको ये डस्टबिन में डाल देंगे? नो, देख एक असूल है सर हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन का और मैनेजमेंट का मंगट साहब, वो ये है कि जिस फोरम ने एक फैसला किया होता है ना, हाँ, उसे हायर फोरम जो है ना उसको आंडू कर सकता है। सही। कम से कम उस फोरम पे तो जाए ना, वफाकी कबीना के पास Yes. जाए। तो इसमें उसको भी नहीं किया जा रहा। हाँ, मैं अब दो चीजें हम मैंने कहा, तीसरी चीज पे हम जिस पे आए हैं कि जब तक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेलेवेंट बंदे नहीं लगाएंगे उस वक्त तक यही नतीजे निकलेंगे। अच्छा ये जो ब्लंडर है, आप क्या समझते हैं ये ब्लंडर क्यों हुआ है, क्यों चेयरमैन तक गलत मालूमात गई हैं? मैं इसके बारे में, चूंकि मैं इससे थोड़ा सा इन टच नहीं हूं बड़े देर देखिए से। बोर्ड मीटिंग है, उसमें काफी लोग बैठे होते हैं। भाई इसकी सिंपल सी बात है, ड्राफ्ट समरी जाती है कंसर्न मेंबर के पास। सही, कंसर्न मेंबर ने देखना होता है कि समरी रूल के मुताबिक है या नहीं है, बिल्कुल सही, फैक्ट्स और फिगर ठीक है या नहीं है। सही, उसके बाद फिर बोर्ड में जानी होती है। बिल्कुल सही। क्या मेंबर ने देखा इसको? क्या मेंबर के नाले में अगर टाउन प्लानर होता तो उसके नाले में चीजें उसको पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब हम कॉन्सिक्वेंस पे हैं कि क्या सैदपुर वाले ये डिमांड नहीं करेंगे, हाँ, क्या मालपुरा वाले डिमांड नहीं करेंगे, क्या आपके जो सेक्टर 12 सीरीज के ऊपर जिनको आपने एक्विजिशन भी आपने अवार्ड करना है उनका, क्या वहां पे जो गांव बिल्टअप है आप उसको भी इस तरह करेंगे? बिल्कुल, कैसे रख सकते हैं? फिर सेक्टर क्या डेवलप करने आपने? बिल्कुल। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है। लिहाजा ये चीज को पूरी मॉडल विलेज का जो इशू उसको रिजॉल्व करने के बजाय उसको फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। सीडीए के पास सजदा साहब का वक्त है, मतलब अपनी यस गलती ऑफ कोर्स, लेकिन रेलेवेंट फैक्ट सामने लाई जाए। जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर प्रेसिडेंट जिनको कोट किया जा रहा है उनका कॉन्टेक्स्ट देखे किस केस में हुआ था, वो इधर रेलेवेंट है या नहीं है। फिर बाजिश के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए। तो फिर भाई आप प्लाट अलाट कर जो कैसे वापस लोगे? किस पॉलिसी, जिस पॉलिसी का प्लाट अलाट की है उस पॉलिसी का आपको मॉडल विलेज बनाना इधर, और फिर फ्यूचर में आप कैसे इन विलेजेस को एक्वायर बिल्टा प्रॉपर्टी को कहेंगे हमें तो इधर रखो, जो C13 जो D13 F13 वो कहेंगे हमें तो इधर बैठना जी, आपने किया ना, हमें भी इधर कर दें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। जनाब चेयरमैन साहब, एक और मीटिंग करें, बोर्ड मीटिंग, लेकिन उसमें मीटिंग वही करें जो आपका स्टाइल है, झटका स्टाइल, कि लितर ला लो कि किने गलत मालूमात दी थी हैं। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को अल्लाह हाफिज़।